बताओ प्रियांशु। Elements are present in definite proportion by ठीक है। नाउ डाल्टन्स पोस्टुलेट बताइए उमेश। कुछ तो बताओ, शायद चार बताओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल, ये मन से बना रहे पॉसिबल। हाँ रोहित बताओ क्या पॉसिबल। All matter is made of very tiny particles called atom, which participate in chemical reaction. हाँ Not related and not discrete chemical reaction. ये सेकंड है। एटम्स आर मास मत बोलो। Atom are individual particles which related and not discrete chemical reaction. जो ही बता रहे हो। अभिनव बोलो। All matter is made of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Atoms are given in a identical mass of element. ये कोई नहीं है। दीपिका बोलो। All atoms are made up of very tiny particles known as atoms, which participate in chemical reaction. Atoms are very indivisible particles which cannot be created and destroyed. Atoms of given element have identical masses and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. चार सही हैं। आशना बोलो। All matter is made up of very tiny particles and atoms in a chemical reaction. Atoms are individual particles which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element have different अच्छा एक ही एलिमेंट के सबके डिफरेंट मास हो जाएंगे। हाँ बोलो। All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. All atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of different elements have different masses and ये थर्ड है, डिफरेंट पहले है क्या? atoms of different elements have डिफरेंट पहले नहीं है, जो थर्ड पोस्टुलेट नहीं बता, फोर्थ है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। atoms of given elements have different masses and अच्छा एक ही एलिमेंट पे सभी हाइड्रोजन के एटम पे डिफरेंट मासेस हैं। स्वातिका बताओ। All matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Atoms of a given element have identical chemical properties and masses. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms combine in its रिद्धि बताइए। matter is made up of all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms क्या कर रही सारे तो बता दिए, तुम वही पे दो पेपर पढ़ी। चार तक तो सब बता रहे हैं। हाँ बोलो। all matters are made up of very tiny particles called atoms. Atoms are indivisible particles which can
cannot be created nor be destroyed. Atoms of given element are identical in chemical reaction and mass Chemical properties. chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. बताइए। All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atoms of given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different chemical properties and masses. Atoms combine in ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number and type of atoms are constant in a given compound. कांस्टेंट वर्ड है, चेक करो। हाँ? चलो उमेश रिपीट करो। Participate in chemical reactions. Atoms are made up of very tiny atoms are indivisible particles which cannot be created or not be destroyed in a chemical reaction. Atoms of different elements have different masses and different बताते ही नहीं है। चौथे का तीसरे बता दिए पूरे क्लास, इतना टाइम देने के बाद भी नहीं बता पा रहे। चलो ना, दैट इज डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट हैं ये 1700 में आए। सो पोस्टुलेट्स, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, इसे एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। दैट इज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। जो भी है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ very tiny particles called atom. Very tiny particles called atom. सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, सूक्ष्म कणों से, जिन्हें परमाणु कहते हैं। So which participate in chemical reaction, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। In chemical reaction ये इतने छोटे हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल, कि इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे सिंपली नहीं तोड़ा जा सकता। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही इनका सृजन किया जा सकता है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। सभी, किसी तत्व के सभी परमाणु, all atoms of a given element, उस समय उन्हें आइसोटोप की जानकारी नहीं थी, वरना वो बोल दिए होते कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम सब अलग अलग मास के, उस समय था ही नहीं आइसोटोप का कोई ज्ञान। लेकिन इन जनरल हम यही कहेंगे, all atoms of given element, वो कैसे होंगे? are identical in mass। यही वो पॉइंट है जिसे उमेश ने गलत बताया था। आइडेंटिकल इन मास और रिद्धि ने नहीं बताया था। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी पॉइंट पर आशना ने बोला था कि एक ही एलिमेंट के मास की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। हो सकता है उनके मन में आइसोटोप्स का पर्सपेक्टिव हो, वो डाल्टन को ओवर रूल कर रही थी। उन्होंने, उनके मन में ये था कि प्रोटियम ड्यूटेरियम अलग अलग है, तो उनका मन नहीं माना कि नहीं सर अलग अलग होते हैं, तो सत्य उनके मुंह से निकल गया। चौथा देखो, ठीक है।
That is all atoms of different elements. Of different elements. Copper और iron ले लो. Have different masses. तो उनके मास का सेम होंगे, एटॉमिक मास. डिफरेंट मासेस होंगे उनके, और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ देखिए, एटम कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशो. फैन चाहिए क्या तुमको? ठीक है. एटम कंबाइन इन स्मॉल रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर. ऐसा कभी तुमने देखा है कि F98 और O107 ऐसे रेशो में कभी कंबाइन किए हुए होंगे? 1-2 के रेशो में ज्यादातर होते हैं. CO2 H2O NH3 1-3 के रेशो. दो कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म. क्या करने के लिए? टू फॉर्म कंपाउंड. तो अब ये ऑन कर देता हूँ, आवाज आ रही है बाहर से. चलो. एटम कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. जैसे NH3 मैंने बताया, एग्जांपल देख लो. NH3 तो 1:3 का रेशो हो गया. और सिक्स्थ, दैट इज द रिलेटिव नंबर. इवन हमने ऐसे लिख दिया है अरेबिक नंबर्स में, आपको भी रोमन में लिखना चाहिए क्योंकि पोस्टुलेट में ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं है. तो बुक में तो रोमन में ही लिखा. तो इस तरीके से the relative number and kind of atoms, ठीक है, are constant in a given compound. फिर से देखो इस चीज को. ये तो तुमको समझ में आ गया कि कॉपर एंड Fe हैज डिफरेंट मास. बोलो समझ में आया कि नहीं? एटम्स हैव डिफरेंट मास. डिफरेंट मास. अगर किसी गिवन कंपाउंड में मैं जैसे ग्लूकोज कहूं तो ग्लूकोज C6H12O6 है, तो इसमें CH और O का क्या रेशो है? 1:2:1. देखो 6 से डिवाइड करो. और कोई कहते हैं हम ग्लूकोज नाइट्रोजन से बना के दिखा देंगे, तो क्या काइंड ऑफ एटम बदल सकता है कोई ग्लूकोज का? कहते मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा जो नाइट्रोजन का होगा, वो अमोनिया पिला देगा तुमको. और अमोनिया यूरिनल से निकलने वाली गैस है. तो क्या ऐसा हो सकता है? तो पहली बात कि कंबाइन करते होल नंबर में कोई नंबर ना, उनका काइंड ऑफ एटम बदला जा सकता है किसी कंपाउंड में, और ना ही रिलेटिव नंबर. अगर H3O कोई पिला दे, कहते मैं रिलेटिव नंबर बदल सकता हूँ पानी का, तो क्या H3O से पानी बन जाएगा? जहाँ O2 सांस लेने में फायदेमंद है वहीं ओजोन हानिकारक है एट द लोअर लेवल. अपर लेवल पर तो वो शील्ड करती है, यहाँ ओजोन हो जाए तो प्राणी मर जाए सारे. तो दैट इज एट लोअर लेवल. वो एट लोअर स्टेटा ओजोन क्या ठीक है? नहीं है. तो इस तरीके से एटम के बदलने से, उनके रिलेटिव नंबर के बदलने से चीज ही बदल जाती है. ओके, नाउ अब आगे देखिए. इस पर कई क्वेश्चंस और MCQ आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट पे देखो, पेज 28. पेज 28 पे दिया है कि बोलो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है जब वो वाटर बनाते हैं? क्या 1:8 का रेशो रहता है? और वो कह रहा है कि मान लीजिए 3 ग्राम हाइड्रोजन किसी एक सैंपल में है
a sample contains 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो उस सैंपल में, ठीक है, और सैंपल किसका है? वाटर का। ये वाटर में रेशो दिया है, और भी कुछ बनता होगा, H2O2 भी बनता होगा, आँख की दवा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऐसा नहीं कि H2O ही बनता है, ये आँख की दवा है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें एक ही बनेंगी। जैसे N से है तो N2O भी बनता है, NO2 भी बनता है, और N2O3 भी बनता है, इसी तरीके से N2O5 भी बनता है, NO भी बनता है, अलग अलग बनते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? लॉफिंग गैस, जो एक बार अक्षय कुमार ने एक पिक्चर में सबको सुना दी थी, तो पूरा पार्टी हंसने लगा। नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस। अगर इसको सूंघ लो तो सारे सेंसेस फेल हो जाते, और ज़्यादा देर सूंघ लो तो आदमी मर जाए। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये चीज़ क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये कौन सा है? डाई नाइट्रोजन। मोजिद बोलो क्या नाम है? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देख के बोलो ना, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोल रहा कि नहीं? तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देख लो किसी की पूंजी गिर गई है। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं तो सरकारी मान ली जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग उठा लें। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दिस इज, नाइट्रोजन के कई कंपोनेंट है, हाइड्रोजन का भी मैंने बता दिया। लेकिन ये जो चीज रेशो है, ये किस में पाई जाती है? बोलो दिव्यांश। चुप रहने से थोड़ी तुम्हारी विद्वता की पहचान होगी। बोलो किस में पाई जाती है ये रेशो? हाँ बोलो जिगीशा। H2, वाटर का रेशो है। कोई आँख की दवा का रेशो थोड़ी H2O2 का, सही है? तो अगर वाटर में 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अभी ना वैल्यू प्लेस करो। mass of hydrogen given 3 gram. तो क्या चीज करें आप? प्लेस करिए वैल्यू। यहाँ 3 ग्राम लिख दें। Yes, sir. अच्छा 3 ग्राम, और नीचे नीचे mass of oxygen लिखेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 1/8। ये इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ। सो 3 ग्राम इंटू 8। इतनी बात आसान समझ में आ गई तुमको? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज 24 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। तो उस सैंपल में ऑक्सीजन उसका 8 गुना होगी कि नहीं? क्योंकि 3 गुना ये है, तो 3:1 का रेशो है। यही इसका आंसर हो गया। सही है कि नहीं? अगला सवाल देखिए। साची, which postulate of Dalton's atomic theory is result of law of conservation of mass? बताती नहीं हो जल्दी, जैसे खजाने का नक्शा छिपा के बैठी हो। बोलो जिगिशा। सेकंड में लिखा है ना तो परमाणुओं को सृजित किया जा सकता है, ना ही उनको विनष्टीकृत किया जा सकता है। तो सेकंड पोस्टुलेट इज, डज इट नॉट रिजेंबल विद दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुमको ये नहीं लगता कि यही चीज होनी चाहिए? बोलो लवाशिए का। तो देखो इस चीज को, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे पहली बार किताब उठाई हो साची। दैट इज सेकंड postulate of Dalton's atomic theory. Is result of law of conservation of mass. Riddhi, which postulate of Dalton's atomic theory explains the law of definite proportion?
करेक्ट। देखो उसके पास बैठ रही तब भी तुम ठीक से नहीं बता पा रही, वो तुरंत बता दी कि सिक्स्थ पोस्टुलेट। टैलेंटेड है तो उसका फायदा तो उठाओ, क्योंकि उसने ये तो यहाँ से देख लिया होगा कि फिक्स्ड है, ये चीज यहाँ देख लिया, और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वर्ड देखते उसने तुरंत जान लिया। तो सीखो उससे कुछ। जब तक अनुष्का उसके बगल बैठी रही, बहुत तेज रही, उसमें जादू है। सही है। तो सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ, यहां से देख के नहीं पता चल रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम फिक्स्ड है, उसमें भी फिक्स्ड ही होते हैं। मास फिक्स्ड होता है कि नहीं 1:8 का या 3:8 का, जो भी मास होता हो, तो वो फिक्स्ड है, तो उसी चीज को किया गया 1:8 का होता है। ऐसे फिक्स्ड कहाँ से पता चल रहा है कि ये सब फिक्स है, काइंड ऑफ एटम एंड जो उनके रिलेटेड, यहीं से पता चलता है। अगर एटम फिक्स है तो मास भी फिक्स्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। इज रिजल्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Which postulate of Dalton's contradicts the existence of isotopes? बहुत, ये भी टैलेंटेड निकली, तुम भी बोलो अभिनव। postulate number 3. हाँ, क्योंकि which postulate of Dalton, लिखो इस क्वेश्चन को भी, ये भी आता है। Of Dalton contradicts existence of isotopes. That is postulate, आंसर क्या है? Postulate number 3। हाँ जी किशा, which postulate of Dalton contradicts the existence of isobars? 4, क्योंकि कैल्शियम का और आर्गन का सेम मास है, वो कह रहा डिफरेंट मास होगा, तो कैसे सेम मास हो गया, है बात कि नहीं। और यहाँ पर देखो कि दैट इज आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। जैसे अगर मैं कहूं कि C612 का एटॉमिक मास 12U है और C613 का मास 13U है और C614 का मास 14U है, तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग हो गए कि नहीं। हाँ जिप्ती, which postulate of Dalton contradicts the existence of isobars? postulate number 4. Which, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ। Isobar of argon and nitrogen and सही बता रही हो, नाइट्रोजन है, carbon. सही है। Which postulate of Dalton contradicts existence of isobars? So that is postulate number 4. Example, the argon 1840 and calcium 2040 have same atomic mass. चलो खैर ये बहुत पहले बना हुआ था, इसलिए कंट्राडिक्ट क्या कहेंगे, क्योंकि साइंस तो धीरे धीरे चलती है, आगे बढ़ती है। अब आज की चीज़ को तुम तुलना करने लगो 500 साल पहले से, तो कुछ होगा क्या। लेकिन फिर भी हम इससे क्या होता है, किसी चीज़ का कॉग्निशन, संज्ञान बेहतर ले सकते हैं। अब आगे देखो नाउ, हमारी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों केमिकल लॉ से मिलते जुलते हैं, तो चलो हम वहाँ पर पहुँचते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो आशना, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है
अब देखिए 0.24 ग्राम सैंपल, इसमें सैंपल रखा हुआ है और उसमें क्या क्या है, वैसे मैं बता दूं ये B2O3 है, डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड। वहां से फार्मूला पढ़ो, ठीक है, डाइबोरॉन, ठीक है, लिख लो डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड। तो ये सैंपल दिया है। अच्छा, इसका वजन कितना है 0.24 ग्राम, और इसमें बोरॉन का कितना वजन है। अगर इसको अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंपाउंड है, इसको किसी केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन करा के बोरॉन और ऑक्सीजन को आप अलग कर सकते हो। इसको इवेपोरेशन से कर पाओगे क्या, डिस्टिलेशन से। ये कंपाउंड है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग्स है। तो बोरॉन कितना दिया है और ऑक्सीजन कितना दिया है, 0.144 ग्राम, इनके मास दिए हैं। तो आपको चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन, तो मास परसेंट ऑफ बोरॉन। प्रियांशु फार्मूला बताओ। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन तो प्रभात के जाने से तुम्हारी आत्मा ही चली गई। आधे सवाल तो तुम्हारी ज्यादातर पिछले 6 टेस्ट खराब कर रहे हो। हाँ बोलो। मास ऑफ बोरॉन का पूछ रहे, ऑक्सीजन का बता रहे, बताओ। मास ऑफ, बोलने में भी आदमी सेंस लगा लेता है, अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100। बोलो बात सही है कि नहीं। इट इज वैल्यू फीड करो आरिश। 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100। पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं हो। चैरिंग एक्शन को तुम अगले दिन लिख देते हो चैडिंग एक्शन। ये भी नहीं कि पढ़ के आओ, ठीक है, कमजोर हो तो अगले दिन पढ़ के आ जाओ। रोज की यही हाल है, ठीक है। दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करो। तो वैसे 2 जीरो है, ये भी देखो 2 डेसिमल के पहले, 2 अंक के पहले डेसिमल है, यहाँ 3 अंक तो 1 के पहले बचे। तो अगर तुम चाहो तो ये डेसिमल अगर हटाना चाहोगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हटाया जा सकता है। 1 डिजिट के पहले बच जाएगा, 2 तो हटा दिया। और इंटू 100 करो। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद साची कितना आएगा, सबसे पहले 9600 लिखो। क्या लिखो, और 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। बोलो बात समझ आ गई। और अपॉन 24। हाँ साची क्या आएगा बताओ, कितना परसेंट आएगा 24 से। 24 का टेबल नहीं आता, 24 से कितनी बार में जाएगा बताओ। 4 टाइम्स, तो 40 आ गया। कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया। अब अगला देखो, ठीक है। अदरवाइज आप किसी छोटे नंबर से कट कर लेना। तो 1 का जब परसेंट आ गया, और ये बाइनरी कंपाउंड है, कोई 3 तो है नहीं, बाइनरी तो है नहीं, तो इस वजह से दूसरे का परसेंटेज कैसे निकालोगे। दैट इज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 100 माइनस मास परसेंट ऑफ बोरॉन। इस लाइन का महत्व है, इस पे तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। 100% माइनस 40%, इट इज 60%। सबसे ज्यादा इस पे मार्क्स होते हैं, इस पे और इस पर। ये अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये और ये लिखने में 1.5 मार्क्स, बाकी 1.5 मार्क्स ये। कितना ध्यान रखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज इसके। 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। अच्छा, तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करो तो क्या बनता है, CO2।
3 ग्राम जलाया गया और 8 ग्राम ये लगा, इसका मतलब है 3:8 के रेशो में जलते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। तो ये कितना बन जाएगा, अगर इसको बंद बर्तन में राउंड फ्लास्क में जलाओगे तो 11 ग्राम CO2 बनेगी। ये बात तो समझ में आई थी तुमको कि दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल होगा। तो तुम अगर इतना समझ गई हो और मैंने 50 ग्राम इस बार कार्बन ले ली है, तो क्या आप मुझे बताएंगी व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न। अब नेक्स्ट स्टेप लिखो, केस 2। ये तो केस 1 है, ये रिएक्शन होती है। केस 2 में तुमने 3 ग्राम कार्बन लिया है और 50 ग्राम ये लिया है, तो ये क्या बनेगा, अगर आफ्टर रिएक्शन, इसको लिखो, ये T = 0 पर है और ये है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, जल जाएगा सारा कार्बन। तो मुझे बताओ यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, बोलो। स्वास्तिका, आरिश, करेक्ट। जैसा ये बता रहे हैं कि एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एज पर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक ही नाम है, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। एज पर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट रिएक्ट्स विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास ऑफ one element reacts with fixed mass of other element। देख लो, 3 ग्राम कोयला है और तुम दुनिया को डराते फिरो 3 ग्राम कोयला को कि मैं पूरी दुनिया के ऑक्सीजन खत्म कर दूंगा, आज मेरे हाथ में 3 ग्राम कोयला। कर पाओगे? वो जल जाएगा, जरा सी ऑक्सीजन लेके खत्म ही नहीं कर पाओगे। उसको जितने से रिएक्ट करना है उतना ही करेगा। कि तुम पूरी दुनिया को डरा सकते हो कि मेरे पास कोयला है, आज मैं दुनिया की ऑक्सीजन ही खत्म कर दूंगा, नहीं कर सकते। तो 3 ग्राम अगर 8 से करता है तो 3 8 से ही करेगा, सही है। और जो बच जाएगी ऑक्सीजन इस राउंड फ्लास्क में, वो बच जाएगी। तुमने स्पेटुला में क्या क्या लिया बताओ, यहाँ पर 3 ग्राम लिया है, कितना कोयला लिया है 3 ग्राम, और इसमें ऑक्सीजन कितनी ली है 50 ग्राम, ऐसे लिया है। तो अब मुझे बताओ 3 ग्राम कितने से क्रिएट करेगा, ये रिएक्ट करेगा 8 से ही करेगा, क्योंकि 3 पहले भी 8 से करता था। कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशो ही CO2 में कितना है 3:8। तो उसी अगर मोलर लेवल पर देखो तो उसी हिसाब से करता है, और नहीं मोलर लेवल पर तुम नहीं देखना चाहते तो मैंने तुमको मोलर मास की भी चीजें बताई हैं कि ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम, ये 44 ग्राम बनता है कि नहीं। यहाँ से ले लो, अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट नहीं करता। मोलर मास में भी तो चीज़ें बताई हैं कि नहीं। अगर तुम मोलर मास में ना लेना चाहो तो तुम एटॉमिक मास में ले लो, वहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है। C+O2 तो बोलो क्या बनाता है 12U, किससे करता है 32U से, और कितना बनाता है, अगर तुम पूरे में Na यानी अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यही चीज ग्राम में बन जाएगी, क्योंकि तुम 1 मोल ले रहे हो। लेकिन फिर भी 3 और 8 का ही तो रेशो आया। तो क्या लिखोगे बोलो, 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विथ, सेंटेंस पूरा करो, ऑक्सीजन, एंड हाउ मच ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। बता ही नहीं पा रहे हो, अब बोलो 42। हाँ भाई, 8 ग्राम कम करोगे तो 42 हुआ, वो 39 होता है, ठीक है। सो 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट। सबसे बड़ी चीज है ये लिख देने से आपको अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो एक यही मिल जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।
will react with 8 ग्राम O2। चेक करो आफ्टर कंपटीशन। यहां कितना लिखें? रिद्धि बोलो। करेक्ट, बोलो कितना लिखें? इनका कोयला कितना घटिया है, जल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बचेगा। इनका कोयला जल ही नहीं रहा रिएक्शन के बाद भी, कहने 3 ग्राम बचा ही रहेगा, जल नहीं रहा। अरे जलाओ कोयला लाई हो तो ये कितना बचेगा? क्योंकि अब 3 ग्राम जल चुका है, 8 ग्राम इसका गया, तो कितना बचा बोलो? 42 ग्राम। 3 इसका गया, 8 इसका गया। यहाँ कितना बना? 3 इसका गया, 8 इसका गया। हाँ सही से बताया करो। समझ आई बात पूरी? 3 नंबर का प्रश्न आएगा, कर लोगी? तो क्या लिखोगी? 3 ग्राम विल रिएक्ट विद 8 ग्राम O2। आगे का सेंटेंस बोलिए रिद्धि। एंड 42 gram of O2 will रिमेन, बोलो बोलो, अभी बताया मैंने। हाँ बोलो। हाँ सुना भी करो, ये नहीं कि मैं ही अपने में सबसे बड़ी हूँ, मुझे सब आता है, ऐसे मत सोचो। एंड 42 ग्राम O2 विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, और CO2 कितना बन जाएगा? तो मान लीजिए ये चीज हुई, तो अब इस फ्लास्क में क्या क्या बचा? इस फ्लास्क में, इस स्पेटुला में मौजूद क्या बचा वो बताओ। कितना क्या बचा? बहुत अच्छा, क्योंकि अगर प्योर कार्बन है तो राख बचने की कोई जरूरत ही नहीं। प्योर कार्बन कोक लेके आओ, सब CO2 बन जाएगा, कुछ बचेगा क्या? उसमें निशान तक नहीं बचेंगे, नथिंग इज लेफ्ट। अच्छा बोलो, इस राउंड फ्लास्क में क्या क्या बचा? इसमें 42 ग्राम CO2। बहुत अच्छा, इसीलिए आप टैलेंटेड हैं, सारी दुनिया में आपका नाम है, आपने अपने मुंह से लोगों को जीत रखा है। और बताओ, और क्या बचा? बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, कितनी बड़ी बात। और बोलो बेटा। और 11 ग्राम CO2। हाँ, क्योंकि 11 ग्राम ये बचा, यही सब तो बचे, सही है। 11 ग्राम CO2। चलो आगे की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओके, जब शुरुआती समय था, जब सभ्यता बिल्कुल शुरुआती दौर पर थी, so in 1600 there were few, that is 17 elements were known. ठीक है, up to, फिर उसके बाद 1700 there were 78 elements were known. फिर अप टू 1908 तक लगभग सभी एलिमेंट्स 110 एलिमेंट्स वर known. धीरे धीरे फिर अभी तक तो 118 हो गए, बहुत सारे अभी नाम देने बाकी हैं, सब ऐसे लिखे। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया? इसका मतलब है कि शुरुआत में जब थोड़े एलिमेंट से, तो डाल्टन ने अपने सिंबल इस्तेमाल किए। ये सिंबल जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये किसके द्वारा इस्तेमाल किए गए संजना? ये जो डबल लेटर इंग्लिश के सिंबल हैं, अल्फाबेट हैं, किसके द्वारा इस्तेमाल किए? बताओ, साल भर से केमिस्ट्री पढ़ रही हो, आप बोलो बेटा। करेक्ट, दैट इज बर्जीलियस। ये जानती है चीजों को। फ्रंट सीटर्स आर ऑलवेज जीनियस। कितना तेज बताते, समझ में आ गई बात? और जो राउंड में सिंबल लिखे थे, कहीं कलर किया था, कहीं प्लस बनाया था, वो किसने बनाए थे? हाँ करेक्ट, डाल्टन ने बताया था। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो फारसी उसे क्या है, वो पूरी कुरान पढ़ जाएगा फारसी में लिखी हुई। ये चीज है इसमें मौजूद। तो अब हम देखेंगे द सिंबल प्रोजेक्टेड बाय डाल्टन, और दूसरा क्या करेंगे? द सिंबल प्रोजेक्टेड बाय, ये कौन है?
बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 2 लेटर या 3 लेटर ये ट्राइनोमियल और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया। समझ में आ गई बात? एक चीज संजना ने बताई एक मोजिस में, पूरी बात आप लोगों के सामने आप ही के फ्रेंड्स ने बताई है, कोलीग्स ने। चलो, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, बुक में निकालो, सिंबल प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। या तो मैंने पहले से पढ़ लिया होगा, संजना इतना कैसे जानते? तो सिंबल proposed by John Dalton। चलो, जॉन डाल्टन ने कुछ चीजें बताई। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने एक डॉट ले लिया सर्कल। फिर देखो, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के लिए क्या किया? सर्कल। कार्बन के लिए क्या किया? काला। उन्होंने बोला ये काला होता है, इसे काला बताओ। अच्छा, सल्फर के लिए क्या किया? सल्फर प्याज में होता है, बोला ये बड़ा मेडिकल है, अगर स्किन पे सल्फर लग जाए, किसी के स्किन में कुछ इरिटेशन है, वो प्याज घिस लेते हैं, लहसुन घिस लेते हैं, सही जाता है। इसीलिए बाजार में सिल्वर सल्फर डाइजीन भी आती है, कहीं इरिटेशन है तो सल्फर ही ऐसा येलो कलर का होता है। देखो चौथी लाइन में येलो कलर का जैसा है ना। और यही देहरादून में सहस्त्र धारा है, लोग गंधक में स्नान करते हैं अपने शरीर के सारे रोगों को, त्वचा के रोग, एंटीसेप्टिक है भाई, त्वचा के रोग को दूर करता है। तो सल्फर समझ में आ गया, इसलिए सल्फर में कैसा निशान है? मेडिकल का, सही है। अच्छा, अब अगला देखो जरा, कॉपर में क्या लिखा? सी लिख दिया। और आयरन में क्या लिख दिया? आई लिख दिया। लेड में क्या लिख दिया? बोलो, एल लिख दिया। गोल्ड में क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे ग्लिटर बना दिया। लिखा है जी, जी लिख दिया। और मरकरी में क्या किया? और लेटर वाला और भी कोई क्या? एक प्लेटिना में पी लिख दिया। देखो पहले सारे में लेटर वाले लिखवा दे रहा हूँ। प्लेटिना में क्या लिखा? ये पी लिख दिया। और अब तो फास्फोरस और मरकरी बचा। तो फास्फोरस में क्या लिखा? इसमें ऐसे उल्टा हुई जो एक गाड़ी होती है ना, बहुत महंगी गाड़ी होती, लैम्बोर्गिनी ऐसा कुछ, ऐसा मर्सिडीज का निशान बना दिया। और दैट इज एक और होती है मरकरी। तो मरकरी में कैसा निशान बना दिया? ग्लिटर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सब किसके द्वारा प्रपोज्ड थे? क्योंकि थोड़े से ही थे उस समय, 17 थे, तो इनके सामने जो काम के थे उन्होंने 10-12 के कर दिए, ज्यादा थे ही नहीं। कितने? सिल्वर बच गया, तो सिल्वर को ऐसे लिखो, सिल्वर को ऐसे लिखो। अब जरा देखो, लैटिन नेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो तुमको कुछ चीजों के अब लैटिन नेम बताने होंगे। उसी बेसिस पर बर्जीलियस ने उनका सिंबल दिया, डबल लेटर। कभी कभी तुम सोडियम बोलते हो और एसओ नहीं लिखते हो, एन लिखते हो, ये क्या रीजन है? एसओ नहीं लिखते हो सोडियम को, एस भी नहीं लिखते हो, एन लिख देते हो। इसके लिए क्योंकि जो सबसे अच्छे वैज्ञानिक थे वो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जानते हो, वही लैटिन अमेरिका है। और वहाँ कौन लोग रहते थे? स्पेन के लोग। स्पेन ने वहाँ कॉलोनाइजेशन कर रखा था। और ग्रीक और लैटिन अमेरिका, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक। चलो, कहने का मतलब है कि लैटिन नेम ऑफ सम एलिमेंट्स, तो आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट और सिंबल प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस। और तीसरा, दैट इज लैटिन नेम।
बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, जैसे डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस ने डिवाइन फोर्स थ्योरी दी थी। बोला कि जो इंसान है वो इंसान और इंसान के अंदर की चीज़ भगवान ने बनाई है, वो कोई बना नहीं सकता। बाद में इनकी इस थ्योरी की धज्जियाँ उड़ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने लैब में एसिटिक एसिड और न जाने क्या क्या बना दिए और उन्होंने बोला देखो टेस्ट ट्यूब में हमने भगवान को उतार दिया। बर्जीलियस ने डिवाइन फोर्स थ्योरी दी कि इंसान और इंसान के अंदर जो भी बनता है वो लैब में नहीं बनाया जा सकता। उसको मतलब इंसान के अंदर भी जो बनता है, चाहे एसिटिक एसिड, मीथेन, वो कहते हैं ये भगवान के द्वारा बनाया गया। इसीलिए तुम्हारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्होंने बोला ऑर्गेनिक भगवान ने बनाया है और इनऑर्गेनिक इंसान बनाया। लेकिन इस थ्योरी की बाद में क्या हुई, दूसरे साइंटिस्ट ने धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि लैब में बना दिया एसिटिक एसिड। अभी कल बताया था ना कि CH3COOH का नाम एसिटिक एसिड है, वो बना दिया गया। ठीक है, चलो अब तुम सिर्फ मुझे बताओ गोल्ड के लिए अभिनव सिंबल क्या है और इसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम। नाउ सिल्वर के लिए मोहजिब सिंबल बताओ और उसका नाम बताओ। बड़ा लेट करते हो। हाँ उमेश आप बताओ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तेज बच्चों से पूछा। हाँ बोलो। अर्जेंटा। उमेश अच्छा सोडियम का तो बताओगे? सोडियम का तो बुक में भी लिखा है, तो क्या होगा फिर? बुक से भी नहीं देखोगे, कोई बात नहीं, आप बोलो। बुक से तो देख लिया करो। चलो दिग्विजय पोटेशियम का बताओ, बोलो। और इसका लैटिन नेम बताइए। केलियम, अच्छा बताया आपने। रोहित आयरन का बताइए। Fe कहां से आया? बोलो। पैरम। और कॉपर का बताइए आरिश। Cu। तो यहाँ Cu है लेकिन यहाँ Cu ऐसा कहां से आया? बोलो रिद्धि, आप बताओ। क्यूप्रम, क्या बोलोगी? क्यूप्रम, सही है। अब जरा देखो, दैट इज टिन। टिन को एसन कहते हैं, जिसमें हम लोग कोक पीते हैं वो सब टिन का बना हुआ होता है, लोहा नहीं होता है, नहीं तो जंग लग जाए। हाँ हाँ, तो स्टेनम सही हुआ, फिर स्टेनस है स्टेनम। अब देखो ये सारे किसके नेम है? ठीक है, लैटिन नेम। और कोई तुम्हारे ख्याल में आ रहा है अनुष्का? लेट का बताओ। पीबी। वो कहां से आया? लंबन। लेट PB प्लम्बम, इतना काफी है, इसी में से आ जाएगा। अब जरा देखो, नाउ हाँ कौन सा? मरकरी का लिखो, सही बताया। मरकरी Hg। दीदी बताओ। बंद कर दिया पढ़ना, कोई बात नहीं, बोलो आप। सरल सरल नहीं बता पा रही हो। ये कितनी बढ़िया टी शर्ट पहने हो, ठीक है। महंगे कपड़े पहनो तो महंगे जवाब दो, सही। हाँ सर मर्क्यूरी में कहीं कॉन्टेक्स्ट पे कुछ और भी बोलते हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्राजरियम, मैं इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ। हाइड्राजरियम ही होगा, Hg है ना। लैटिन नेम ऑफ मर्करी।
हाइड्राजीरम, सही बोल रहे हो, देखो हाइड्राजीरम। ओके, अब हम बात करते हैं कि दैट इज नाउ सम नेम was given by IUPAC naming system, and in this the contribution of Berzelius is made. Binomial nomenclature system, monomial, binomial and trinomial। कुछ पे मोनोमियल है, सिर्फ एक लेटर का है, और कुछ पे 2 लेटर है, और कुछ पे कितना है, 3 भी है, जैसे यू यू ओ अन अन ऑक्टियम, ऐसा भी है। 18 अन का मतलब 118, अन सेप्टियम 117, अन पेंटियम 115, अन ट्राइटियम 113। जिनके नाम अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि कोलंबिया बोलता है इसकी मैंने इजाद की है, मैंने डिस्कवरी की है, तो मॉस्को बोलता है मैंने, तो आईयूपीएसी बोलता है रुक जाओ, अभी मुझे समझने दो कि किसने किया, तब मैं नाम बोलता हूँ। क्योंकि उनके पहले देशों के नाम पे सब दिए थे, सीबोर्जियम, डब्लियम, रदरफोर्डियम, सब चाहते हैं हमारे यहाँ के साथ कैलिफोर्नियम, ये सब है। तो आप देख रहे हैं ड्रॉइंजिटेनियम, सब ये साइंटिस्ट के नाम, ये सब झगड़ रहे हैं बहुत सारे देश कि हमारे देश के नाम पे दो, हमारे देश के। तो आईयूपीएसी के तरफ जाओ, मैं पहले जांच करूंगा कि इसकी असली खोज हुई, वो भी तो ऐसे ही है कि जो जल्दी से किसी का डिस्कवरी कर लेता है अपने साइंटिस्ट के नाम पे, बोल देता है कि हमारे यहाँ के हिसाब से। तो आईयूपीएसी कहता है कि आप अगर डिस्कवरी कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी तो ला के दो, तुम जल्दी से डिस्कवरी करके ला के दे देते हो। और ये इतने अनस्टेबल है, किसी किसी की तो लाइफ 17 नैनो सेकेंड है, उतनी देर में वो एलिमेंट ही खत्म हो जाए। नैनो सेकंड समझते हो, ये सेकंड का 10⁹ टाइम का। अब अगली चीज देखिए दीदी, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये सब आउटडेटेड है, लेकिन इनके नाम पे ही तो ये सब आया है। तो वो किसने दिया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताओ दीदी, बोलो। स्वास्तिका, आरिश आप बताओ। हाँ बोलो। हाँ ये सब आते हैं एमसीक्यू में, अब तुम चुप बैठी हो, छोटी छोटी चीजें नहीं बता रही। सो इंटरनेशनल, यही पूरे केमिस्ट्री पर होल्ड करती है। यूनियन ऑफ प्योर एंड, जो अप्लाइड है यानी चीजों में एप्लीकेबल है केमिस्ट्री, उस पर इसका दखल है। तो इट हैज प्रपोज्ड 1 लेटर, 2 लेटर और 3 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड naming system which was given by Berzelius, that is a member of IUPAC committee। Berzelius किसके मेंबर थे, which was proposed by Berzelius। वैसे उस समय वो उसके हेड थे, मेंबर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम पे दिया। इसमें क्या किया जाता है, इफ पहली चीज, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, इफ इट हैज 2 लेटर्स, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और सेकंड कैसा होगा, सेकंड इज स्मॉल, हमेशा ऐसा होगा। तो बताओ कोबाल्ट लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जब CO2 लिखते हैं तो CO2 ऐसे लिखते हैं, वो इसको डाई कोबाल्ट कहेंगे, उनका तुरंत टीचर काट देगा। लापरवाही एक स्तर तक ठीक है,
अगर तुमको CO2 तो C और O का साइज सेम रखना पड़ेगा, ये डाई कोबाल्ट है। ऐसा कभी नहीं करना है कि लेटर छोटे बनाते चले गए। CO2 थोड़ी ना है, वो काट देगा UPSC, टीचर ही काट देगा, कहेगा कि अभी से 9th से ये बिगड़ गया लड़का। तो ऐसा नहीं करना है। कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सही है, तो एल्यूमिनियम। कैल्शियम, अच्छा सेकंड, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि 2 लेटर सिस्टम में द फर्स्ट लेटर इज अपर केस। फर्स्ट लेटर को क्या कहेंगे? अपर केस, बुक में पढ़ो। और सेकंड लेटर कैसा होगा? स्मॉलर केस। द इफ पॉसिबल नेम विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दूसरी चीज क्या कही गई? क्योंकि लैटिन को महान माना गया है। जब उनके ऊपर टर्किश ऑटोमन एम्पायर वाले मुगल आक्रमण कर रहे थे, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पैसा लेके नहीं भागे, अपने टेस्ट ट्यूब और ऑपरेटर्स ले लेके जंगल भागे। 2000 लोग थे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पूरे किए कि दुनिया को ज्ञान दे सकें। जबकि उस समय तक 30 लाख ग्रीस के लोगों को, लैटिन के लोगों को ऑटोमन एम्पायर मार चुका। तो ऐसे में ये माना गया कि वो कितने महान थे, उन्होंने अपने जीवन की रक्षा नहीं की, जबकि विज्ञान के लिए कितना कुछ किया। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए लैटिन परिपेज ने जितने किया। तो इफ पॉसिबल नेम ऑफ एलिमेंट दिस विल बी कितना होगा? बेस्ड ऑन या ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब आपको बताना है कि राइट नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे AG, AU, AR, B, BE, BA, BR, इन सब के नाम बताओ। जस्ट एक मौजूद जानकारी के लिए कि कितने फेमिलियर हैं। सिल्वर, और आर्गन, बोरॉन, चौथा मेंबर है, बता दो कौन सा बहुत आगे पीछे? पीरियोडिक टेबल का चौथा मेंबर बेरिलियम। अगला बोलो। बेरियम, ब्रोमाइन, BI, बिस्मथ। देखो चेक करो कहाँ लिखा है बिस्मथ। स्वास्थ्य उंगली रखिए बिस्मथ पे, दैट इज बिस्मथ। CA, CR, CU, ठीक है, CL। पांचों के नाम स्वास्थ्य का बताओ। क्रोमियम, कॉपर, CO, अब आगे देखिए, दैट इज FR, रिद्धि। F और FR के नाम बताओ। दूसरा, पहले ग्रुप में देखो लास्ट, पहले ग्रुप में लास्ट देखो, फ्रांशियम।
सबसे बड़ा एटम और जरा सा पानी में डाल दो तो विस्फोट हो जाए। एक बार मैंने वीडियो भी दिखाया था, बहुत ज्यादा मोस्ट एक्टिव। अब आगे की बात देखेंगे। दैट इज Fe, आयरन। ओके, नाउ ये तीन बताइए साची। सल्फर, सिलिकॉन, इसी से सारे सेमीकंडक्टर चिप और फोन की चिप बनती है, इसी से सिम कार्ड बनते हैं। सिलिकॉन, अच्छी बात करती हो। सेलेनियम की स्पेलिंग करेक्ट कराओ मेरी, ऐसी है कि कुछ और है? आई है कि ये ई है? चलिए अब आगे देखो। दैट इज P, Na, Zn, U। इन चारों के नाम तृप्ति बताओ। फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, यूरेनियम। ग्रुप का और कोई बच गया ऐसा जो इंपॉर्टेंट हो? एक ऑक्सीजन बच गया है, एक Mg बच गया है, Mn बच गया है, बाकी सारे हो गए। Pb बच गया है, Sn बच गया। सोनाक्षी, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ब्लैक कलर का होता है, ड्राई सेल में पड़ता है। इतना हिंट तो दे दिया। ड्राई सेल जिस घड़ी में से बोलो। मैग्नीज, ये लेड, सीसा, ये टिन। आई क्या होता है? आयो है? नहीं बना। अब हम अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 30 पे आओ। नाउ दैट इज atomic mass unit। Atomic mass unit. Now it is called unified mass. ठीक है, earlier it was 1/16 of O816 isotop, उसके मास की, मास ऑफ O816, इसी को O16 भी कहा। उसका 1/16 कर दो, एक प्रोटॉन का मास आ जाए। क्योंकि सेंटर में क्या क्या है जरा देखो, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर चक्कर कौन लगा रहे हैं? देख लो 8 है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं। अगर यहाँ 16 लोग बैठे हैं और बताओ 16 से डिवाइड कर दो तो क्या एक व्यक्ति का मास नहीं आ जाएगा? और अगर एक प्रोटॉन का मास आ गया, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, उस पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है प्रोटॉन पे तो न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रल कर देता होगा ना उसको। तो वो मैंने पहले बताया पाई मेजॉन बैठता है, ऐसा बताया था नहीं? चलो कोई बात नहीं। अगर 1/16 ले लो 16 मेंबर का तो भी 1U है। 1U क्या है बताओ? 1/16 into mass of O16 एटम। लेकिन इसमें 7th डेसिमल प्लेस पर एब्रेशन आ रहा था, 0 नहीं आ रहा।
तो उन्होंने कहा ये 6 डिजिट तक ही ठीक है, 6 डेसिमल प्लेस तक। तो बाद के साइंटिस्ट ने कहा हम 7th डिजिट तक ठीक कराएंगे, तो फिर उन्होंने ओ कर लिया। तो वो अब 7 डेसिमल प्लेस तक सब एक जैसा है। तो इट वाज लेटर रिवाइज्ड, लेटर में क्या कर दिया बताओ रिवीजन करके, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। बोलो सही है। ये बहुत समय तक चला, जिस समय मैं पढ़ रहा था तब भी यही चल रहा। 84 में ये चीज बदली गई। नाउ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जरा उसको समझो। 1/12 ऑफ मास ऑफ कौन सा आइसोटोप, बोलो C12 एटम। आइसोटोप तो मैंने आपको बता ही दिया है, C12 होता है, C13 होता है। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मास यूनिट। अब इसे क्या कहा जाता है, नाउ कॉल्ड यूनिफाइड मास। इसी को AMU कहा जाता था पहले, और अब क्या कहा जाता है, 1U is a unit used to express। रिद्धि सेंटेंस पूरा करो, ये किसके लिए एक्सप्रेस होती है, एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स। ये किसके लिए होती बताओ, एटॉमिक masses of एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल। अच्छा, नाउ इट इज 1/12 हमने लिख दिया ऑफ C एटम। इट्स वैल्यू 1U इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर तुम चाहो, ऐसे किसी के मन में होगा ये U कहाँ से आ गया, अब मैं किसी का वेट कैसे जानूं, कोई बात नहीं, जितना भी उसे केजी में बदल दो। जैसे मैं कहूं कि मास ऑफ C12 एटम कितना हुआ, तो C12 एटम को तुम क्या लिखोगे, 12U लिखोगे। लेकिन मान लो मौजूद क्या नहीं, हमें U तो पता नहीं, ऐसे U में क्या जाने, तो केजी में बदल लें। तो वो इसे कैसे करेंगे, 12 × 1U। अगर तुम बाजार से 4 किलो आलू लाते हो तो क्या वो 4 टाइम्स 1 किलो आलू है, तो 12U क्या 12 टाइम्स ऑफ 1U है। तो इसलिए 1U की अब क्या वैल्यू डाल दोगे बताओ, 12 × 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये किसका है बोलो, मास ऑफ C12 एटम। क्योंकि इसके 1/12 मास को 1U माना गया था, इसलिए इसका मास 12U हुआ, क्योंकि ये तो 12 गुना हुआ। जैसे तुम्हारे बुक में एक तरबूज के 12 हिस्से किए गए और एक हिस्से को 1U कहा गया कि नहीं, तो पूरे तरबूज को क्या कहा जाएगा, 12U। भाई 12वें हिस्से को 1U कह रहे हो, तो पूरे तरबूज को कितना मास हो गया, 12U। तो इसका मास कितना हो गया, जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स उतने यूज का। समझ में आ गई बात। बाकी तो एवरेज एटॉमिक मास अभी हम बताएंगे, दैट इज मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स एज पर देयर अबंडेंस, वो अगले पेज पे। सही है, चलो यहां तक तुमको पता चल गया है। Why is not possible to see atom with naked eye? पेज नंबर 30 का देखो, तो पेज नंबर 30 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, एटम इज सो स्मॉल दैट it cannot be even be seen by compound microscope. Its order of magnitude, order of magnitude यानी पावर ऑफ साइज, इसके साइज का ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर, या इसे कहेंगे कि 1 नैनोमीटर। इतना इसका साइज है, इतना छोटा साइज है डायमीटर। तो वो आंखों से क्या दिखेगा, सो इट कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आंखों से तो ये देखा ही नहीं जा सकता। चलिए
जस्ट आपसे रिद्धि पूछा जा रहा है, वो आप लिख दीजिएगा ये बहुत छोटा है इसलिए आंखों से नहीं देखा जा सकता, सीधी बात लिख दें, है ना। आप बस मुझे एवरेज एटॉमिक मास बता दें, अभी अभी आपको बोल रहा है। बस सुनने की कच्ची हो, जिसको सुनना था मतलब वो लोग सुन लिए, बस तुम कान की कच्ची हो सर। तुमसे फीडबैक लेना बहुत मुश्किल है। अनुष्का रिपीट करो। इतनी सरल सी चीज के लिए वो कितना बार्गेनिंग कर रही थी। एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, सही है। यानी बहुत सारे अगर आपके पास आइसोटोप हैं, एनी एलिमेंट हैज मोर देन 20 आइसोटोप्स। इतने जितने दिख रहे हैं ना, ये ना सोचो कि कार्बन के ही होते हैं, किसी से बहस ना करने लग जाना। अभी 10th में जाने वाले हो, हर के 20 हैं, किसी के 20 से ऊपर हैं, तो सबका एवरेज निकाला गया है। जितना भी यहाँ है सब डेसिमल में है, किसी का भी जो एटॉमिक मास से लिखा सबने लिखा हुआ। तो ये एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल है, सब में छोटा छोटा लिखा। अब क्या क्या है, एक के चारों तरफ यहाँ 20 नोटेशंस हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, हर एक चीज लिखी हुई है। तो तुमको जो चाहिए ये सब इसमें है। ये ऐसे ही 60 रुपए की टेबल नहीं है, इसमें जानकारी तब जाके इतनी महंगी टेबल, हर चीज वहाँ। उससे तुम पता चला सकते हो कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर की तो कोई बात ही नहीं, 1 से लेके यहाँ तक 1 से लेके 118 प्रोटॉन है, सीधा सीधे नहीं लगाए हुए। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज मास वेटेड मीन, और हर एक के 20 क्या है बताइए, समावयवी, दैट इज आइसोटोप्स। मास वेटेड मीन of all isotopes present in, सेंटेंस पूरा करो मौजिद। प्रेजेंट इन एलिमेंट, एन एलिमेंट। आगे बोलो, एस पर। बहुत अच्छा, कितना ये तेज हो गया है। देयर अबंडेंस, मैं तो इसे ऐसे ही हल्के में ले रहा था, मीनिंगफुल चीजें बोलने लगे। एबंडेंस का मतलब परसेंटेज, एबंडेंस का मतलब है तो मास पर आधारित परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन एक 1735 का भी होता है उसी में, और एक 1737 का भी होता है, सही। तो अब ये जो है 75% है किसी भी सैंपल में। तुम बाजार से क्लोरीन गैस खरीद के ला रहे हो कि भाई अपने स्विमिंग पूल को अच्छा बना देंगे और बिल्कुल ही जर्म फ्री बना देंगे। नया तुमने एक वाटर पार्क खोला, क्लोरीन ला के उसमें तुमने पूरी प्रवाहित कर दी, तो ये 75%, और ये कितना है 25%। तो क्लोरीन का कोई सैंपल बाजार से लाओगे, क्योंकि सब केमिकल इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये मिक्सड ही मिलेंगे। जिनकी के सेम केमिकल प्रॉपर्टी वो एक साथ ही तो रहेंगे। तो बोलो इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। इट इज इक्वल्स टू, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into its abundance या percentage plus atomic mass of second isotope into its percentage और divided by 100। बोलो बात समझ में आ गई। पहले का एटॉमिक मास उमेश बताओ, बोलो 35, और इसकी एबंडेंस कितनी है 75। दूसरे की बताइए, दैट इज 37 और एबंडेंस 25, और डिवाइड किससे करोगे बोलो
100 से कर दोगे तो दैट इज, अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो क्या उमेश आप बताएंगे यहाँ कितना बचेगा मल्टीप्लाइंग? 3 बच जाएगा। और वहां बताओ दूसरे में से 25 कॉमन लिया तब तो सिर्फ 37 ही बचेगा ना, और अपॉन 100। बोलो बात समझ में आ गई? इससे इसको कट कर दो तो ये 4 आ गया। 35 3 जार कितना होता है? 105, और उसमें 37 जोड़ो तो कितना आ गया बोलो? 142/4 आ गया। 142/4 अगर आ गया है तो अब मुझे बताओ इसको डिवाइड करोगे तो ये सब मैंने यू में लिया है, ये सब तो यू में होंगे ना इनके एटॉमिक मासेस, तो कितना हो जाएगा? 4 3 या 12 और 22, 4 5 या 20, फिर 2 बचा तो 20। ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। आगे देखो, तो ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। अब हम देखेंगे कि राइट एटॉमिक मासेस ऑफ, तो अब हमें कुछ के एटॉमिक मास चाहिए। लेट अस सी। Now, right atomic masses of H, C, M, O, S, Mg, सल्फर, क्लोरीन और साथ में कैल्शियम। एक में Na भी है, कोई बात नहीं, Na लिख दें, ठीक है। और फास्फोरस कितना? साची बताओ जरा सारे, बुक की तरफ नहीं देखना। यू भी बोलो, यू क्यों नहीं बोल रहे? 14U, 16U, और बोलो। 23U, तुम कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। सल्फर का तुमको मालूम नहीं था? और बोलो दीपिका, पूरे करो। 24U, फिर 23U, 35.5U, 40U, 31U. सही है। 24U, 23U, 35.5U, 40U और 31U। और आर्गन का सोनाक्षी कितना होता है? हाँ बोलो। अभी बताया था, ठीक है, तुम उतारने पे ध्यान दो। दैट इज 40। अभी लिखाया था आइसोमर्स, करा था कि नहीं? 2 मिनट हुए। चलो आगे देखिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? When atoms of one kind or different kind, ठीक है, एटम्स लिखा है, of one kind of different kinds, chemically combined, केमिकली कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन फिक्स्ड रेशो इट फॉर्म्स। इससे क्या बन जाएगा? फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करना चाहिए। जैसे H है, क्या तुम मुझे बताओगे कि जो H के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा भी H ले लो तो उसके आउटर में एक है,
तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, इनकी ऑर्बिट रिद्धि ओवरलैप कर जाएगी, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले के डुप्लेट को भी कंप्लीट करेंगे और दूसरे के भी डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे, ऐसे ओवरलैप कर जाए। तो क्या दोनों का डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो डुप्लेट्स ऑफ बोथ इज कंप्लीटेड। दे डू सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। व्हाई दे केमिकली कंबाइन? व्हाई दे शेयर इलेक्ट्रॉन? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। तो अब क्या बन गया बोलो? S2। क्या अब S2 से S3 बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि इन्होंने अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लिए। तो फिर ठीक है, हमको तुमसे, तुमको हमसे काम है, अब कार्य दुनिया तो बराए नाम। भाई हमारा काम तुमसे चल गया, तुम्हारा काम हमसे चल गया, तो ये जो बची हुई दुनिया है तो नाम मात्र की रह गई। बोलो बात सही है कि नहीं? यहाँ तक तुमको समझ में आ गया? ऐसे ही मॉलिक्यूल बनते हैं। जरा ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा मुझे बताओ? 1 2 3 4 5 6। ये बात तुम जानते हो, क्योंकि उसका 2 6 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मालूम है? इस चीज को कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट नोटेशन। जब मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा तो उसे क्या कहेंगे? लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट नोटेशन। अब मुझे बताओ H के आउटर में कितने होते हैं? 1। और इस H के आउटर में कितना है? तो ये इससे कहता है कि देखो, तुम्हें समझ आ गया? ऑक्सीजन में कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की डेफिशिएंसी है। तो अगर 2 की डेफिशिएंसी है तो 2 टिफिन मैं सोनाक्षी के सामने रख दूं, सोनाक्षी भी अपने 2 टिफिन रख देंगी, और फिर मेरे पास अब 8 होगा। ये भी मेरा घेर लें, मैं भी इनका घेर लूँ। इसी को कम्युनिटी लंच कहते हैं। 2 मेरे पास है तो 4 समझो, मैं जिसके पास 2 लेके जाऊंगा वो भी अपने 2 निकाल लेगा। इसको कहते हैं इफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम ईच कंबाइनिंग और पार्टिसिपेटिंग एटम्स, देन इट इज कॉल्ड, दैट इज शेयरिंग। इसे क्या कहते हैं? तो ये दोनों, ये 1 दे रहा है तो 2 नहीं देगा, ये छिपा देगा, कहेगा ठीक है चलो साझेदारी करते हैं, तुम मेरा एक अपना मानो। इससे भी कहता है तुम मेरा एक अपना मानो और मैं भी तुम्हारा एक अपना मानूंगा। तो फिर इससे क्या इसका 8 हो गया? काउंट करो ऑक्सीजन के पास, और इसके भी 2 हो गए, इसके घेरे में 2 आ गए कि नहीं? तो इससे H2O बन गया। बोलो बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल किस वजह से बनता है? केमिकली कंबाइन। व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? अगर हम देखें कि 2 चीज केमिकल बॉन्ड, व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल कंबाइन या केमिकल बॉन्ड? व्हेन atoms of same kind or different kinds are chemically bonded। तुम combine word ही छोड़ दो, chemically bonded, आपस में chemically bonded हो जाए। तो क्या तुम ये समझते हो मोहजीद कि chemical bond होते क्या हैं? बताओ, लिखो इस चीज को, chemical bond क्या होते हैं? दोस, ठीक है, एटम्स। जब मैं ये कह रहा हूं कि नोबेल गैसेस which have their complete डुप्लेट और ऑक्टेट एग्जिस्ट एज, किसमें एग्जिस्ट करते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म, मोनो एटॉमिक। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। जैसे हीनियर का ज़ेरॉन, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से क्यों कंबाइन करने जाएगा? अच्छा, इसमें 10 हैं तो ये किसी से क्यों कंबाइन करने जाएगा? 8 हैं पूरे इसके 18 हैं तो किसी से क्यों कंबाइन करने जाएगा? देखो, पहले के बाद दूसरे में 8 जुड़ गए, तभी तो तीसरे वाले में AR तक फिर से और 8 जुड़ गए। 8 एलिमेंट भी तो जुड़ रहे हैं। जितने एलिमेंट होते जाएंगे उतने प्लस करो। तो पहले में 2, दूसरी लाइन में 8 है कि नहीं, तो आखिरी वाले में 8 जुड़ गए।
तीसरे वाले में कितने जुड़े, फिर से 8 जुड़े। देखो यहाँ से 8 जुड़े कि नहीं, प्लस 8, यहाँ से भी कितने जुड़े। तो मेरा कहने का मतलब है 2 8 8, और फिर 2 8 18 8 36, फिर 54, 2 8 18 18 8, फिर इसके बाद 86, तो क्या हो जाएगा 2 8 18 32 18। मेरा कहने का मतलब है जिसका 8 पूरा, इतना तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये फर्स्ट पीरियड है क्योंकि इसकी एक ऑर्बिट कंप्लीट है, ये सेकंड पीरियड सेकंड लाइन में आता है क्योंकि 2 ऑर्बिट कंप्लीट है, थर्ड वाली लाइन में आएगा तो 3 कंप्लीट है, चौथी लाइन में टोटल 7 ही तो लाइन है। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 है। फिर और यूओ के बारे में बात नहीं करते हैं, वो तो अगली क्लास का है, सही है। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वे किसी से रिएक्ट नहीं करते और वे केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, तो इसलिए इनको मोनो एटॉमिक कहेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हेन डिफरेंट और सेम और डिफरेंट एटम्स, सेम, मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए, देखो सेम का भी दिया डिफरेंट का भी दिया। सेम और डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड नंबर, सेम है तो नंबर में कंबाइन करेंगे। और जरा ये देखो, ये रेशो में कंबाइन करेंगे, वो भी नंबर रेशो है, तो 2:1 में कर रहे हैं कि नहीं। और ये H2, तो इन फिक्स्ड नंबर और नंबर रेशो, सही है। फिक्स्ड नंबर और एक मास रेशो होता है और एक नंबर रेशो होता है, आइदर बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl का केस जानते हो, Na एक दे देता है और क्लोरीन एक ले लेता है, ठीक है। शेयरिंग भी होगी तो भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, और ट्रांसफर होगा जैसे NaCl तो भी केमिकल बॉन्ड। शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अब वो होगी तो आयनिक बॉन्ड, वो आयंस, सही है। अभी अगले पेज पे आयंस भी तो आ रहे हैं ना तुम्हारे में। तो बाई शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then it is called chemical bond। इसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे। जरा ध्यान दो, केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के हैं रिद्धि। क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से तरीके के अभी अभी मैंने बताए। और सुनती ही नहीं रही तो दिक्कत है, बोलो तो। शेयरिंग और आयन, शेयरिंग है और एक ट्रांसफर, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड के नाम तो बताओ। वो तो ठीक है तुमने बता दिया, बहुत अच्छा, ये तो पूरा जानती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ये हुआ, और दूसरा क्या बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ उसका पूरी करो लाइन। ये कौन से हैं, और ये आयनिक, और जो चुंबक लगाओ पकड़ लेती है चीज को। देखो ये सब रिद्धि का ही कमाल है। किसी के पास बैठी थी, आज 500 के पेन बेची, तभी कमाए होंगे जब इसके बगल बैठी। अब आगे देखो, हाँ रिपीट करो रिद्धि, क्या बोला इन्होंने। कान के पास जाके भी इसको बोलो तब भी नहीं सुनेगी, और वहाँ डोसे के साथ मेयोनीज नहीं खाएगी, इतनी समझ है, सांभर ही मांगेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डम है, डोसे के साथ सांभर खाना है और मोमोज के साथ मेयोनीज, इसको मालूम है। जिस चीज़ से मतलब ही नहीं है, शादी हो जाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, वही कैरियर बना के रखा है। उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं कि मेरा एस्पिरेशन है, ये अभी इसके लिए स्टेक ऑफ लाइफ नहीं है ना, जान की बाजी नहीं है कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। ये फीलिंग जब आ जाती है तब इंसान के लिए ये मरने जीने का प्रश्न हो जाता है। अभी 4 बार बोलो नहीं सुनेगी,
अभी 3 से और बुलवा दे तब भी सिर्फ 2 पोस्टुलेट बोल के चुप हो गए। ये हालत है। जबकि रिया 3 पोस्टुलेट बोलती थी इसकी बहन की, ये 2 पे रुकती है। तो कहीं से मोटिवेशन मिले ना घर में, तो चीज हो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ना बोलो। हाँ और ट्रांसफरेंस का हो जाएगा आयन। हाँ, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। आपस में ये वैलेंसी शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैलेंसी को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा है बताओ? दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के। बोलो, बात समझ में आ गई? कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल बताओ जहां शेयरिंग होती है। 2 एग्जांपल बताओ। बताओ। H2 और दूसरा कौन सा है? H2O। साची, ये कौन सा मॉलिक्यूल है और ये कौन सा मॉलिक्यूल है? Molecule of element. हाँ, Molecule of सही जानती हो। दैट इज, इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? डिफरेंट है तो क्या कहोगे? अब बहुत सारे H2O ले लो तो कंपाउंड बन जाए। ढेरी में ले लो H2O, टोकरी में बहुत सारे H2O, ग्लास में ले लो तो कंपाउंड बोल दिया जाएगा। अभी एक है तो कहा जा रहा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ग्लास भर के ले लो H2O तो क्या कहा जाएगा? कंपाउंड। समझ आ गई बात कि नहीं? हाँ सर, सिंगल H2 है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है। क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो वो एलिमेंट ही होगा। एक तरीके के एटम जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें एक ही तरीके के एटम है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गई? अब ये इसमें NaCl है। हाँ, NaCl है। उसका क्या है? मतलब जैसे ऐसे यहाँ कुछ बोला ऐसे भी कुछ बोल दो। यही चीज मुझे इनकी बहुत पसंद आती है, क्योंकि अनुष्का इज सो फैसिनेटिंग। कहती है कि एक आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। कितनी बड़ी पकड़ है। कह रही उसके पहाड़ होते हैं नमक के, वो कोई 1-2 मिल के नहीं बनाते हैं। एक Na+, फिर एक Cl, फिर एक Na+। कह रही है क्रिस्टलाइन होता है। सर इसे प्लीज मॉलिक्यूल मत बोलिए, इसके लिए फार्मूला यूनिट मास वर्ड दिया गया है। इसके लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज ही नहीं होता। जो कैसे करेक्ट कराती क्लास को, मेरे साथ पैरेलल भी क्लास को पढ़ा रही हैं। अब समझिए चीज़ों को। तो इन्होंने तुरंत पकड़ ली बात। बोले नो सर, कभी भी आयनिक बॉन्ड होगा तो क्या वो मॉलिक्यूल होगा? उसमें एक सिंपलेस्ट रेशो लिया जाता है और उसे क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। दैट इज द सिंपल रेशो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन bonded by electrostatic force of attraction, ठीक है ना, is called formula unit and its mass is called formula unit mass। तो अब NaCl का देखो, तो ये NaCl है, ये फार्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। बोलो बात क्या समझ में आई? फॉर्मूला यूनिट। जहां पे हम हैं, मुझे इससे लेना देना नहीं तुम कहां पे हो, वहीं से बढ़ो। सब बच्चों का एक जैसा इंटेलेक्ट नहीं होता, लेकिन कहीं भी तो हो ना। ऐसा तो नहीं कि कोई लोअर लेवल ही नहीं, वहीं से बढ़ो ना। इतना ही हम चाहते हैं। सब बच्चे एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते, सब में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कोई डांस करता है, कोई वोकल है, कोई सिंगर है, लेकिन तुम कहीं तो हो ना एजुकेशन में, वहीं से बढ़ो। इतने ही चाहते। समझ आई हो तो फायदा लेके जाओ। यहाँ 1.5 घंटा दे रही हो, 2 घंटा, सही। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब NaCl को देखो। NaCl में क्या है? Na का और Cl का स्वास्तिका, जरा कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए। Na का बताओ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पूरा विन्यास बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो तृप्ति। 281। तो 1 दिखाया जाएगा लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसका बताओ। 287। ऐसा क्यों किया?
क्योंकि Cl17 होता है और Na क्या होता है? ये प्रोटॉन की संख्या बताना, इसको कितने की कमी है और इसको कितने की कमी है? इसकी वैलेंसी कितनी है और इसकी वैलेंसी कितनी है? बोलो बोलो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। बोलो, बात समझ आया? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग, ये कभी प्लस माइनस में नहीं होती है, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, उसको उसकी संयोजकता कहते हैं, इट्स वैलेंसी। ये पृथ्वीराज चौहान वाली संयोजकता नहीं है, दैट इज वैलेंसी। सही है? आगे की बात करो, इसके चारों तरफ कितने बनाए गए? 7। इसने इसको एक दे दिया क्योंकि इसको एक फालतू था और इसको एक कमी थी। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसको चला गया दिव्यांश, तो अब बोलो ये क्या बन गया? बोलो, हाँ बोलो, आप बोलो भी ना। Na+ आयन बन गया। यहाँ पे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन दिव्यांश इसको मिल गया, तो ये क्या बन गया? जहां हो वहीं से बढ़ो, कोई तो लोअर लेवल होगा। आप बोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मूर्ख नहीं बनना है दुनिया के सामने, जहां हो वहां से बढ़ो। अब एक उसने बता दिया, तुम बताओ, सीखो दुनिया से, आंख नाक बंद करके मत बैठो, कोई कुछ भी खिला के चला जाए, ठीक है? तो दैट इज Cl-, एक इसे मिल गया ना, Cl- बन गया। अब इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, दैट इज 288। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? स्टैटिक बॉन्ड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और अब अगर तुम इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल कभी भी नहीं है, क्योंकि ये आयंस के बीच का अट्रैक्शन है। एक Na होगा तो एक Cl होगा, फिर एक Na होगा, वहां देखो वैसे रखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर Cl- होगा, फिर Na+ होगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल कठिन लगता है तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर समझ लो, Na+ Cl-, क्योंकि ये रॉक साल्ट में ऐसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो मैं अल्टरनेट बना रहा हूं, और दैट इज Cl-, Na+, Na+, Cl-, और यहाँ पे क्या होगा? Cl- और Na+। इन सब के बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड होगा। तो ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, ये छोटा नहीं होगा। तो क्या कहीं यहाँ मॉलिक्यूल तुमको दिख रहा है? सोडियम के पहाड़ बन जाएंगे। यहाँ देख रहे हो, काला नमक सेंधा नमक के पहाड़ हैं, तोड़ तोड़ के लाते हैं, तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल है क्या? तो इसलिए इन आयनिक कंपाउंड, एक शेयरिंग वाला दिखाया था, वहाँ सब मॉलिक्यूल में देखो CO2 घूम रहा है हवा में, H2O वेपर में भी घूम रहा है। शेयरिंग में अगर दो लोगों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली तो वहाँ काम खत्म। लेकिन यहाँ तो चार्जेस का अट्रैक्शन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो पहाड़ ही खड़ा हो जाएगा, कभी अंत तो थोड़ी होगा। क्या पता कोई बड़े बड़े प्लेनेट NaCl के ही हों, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अभी कंफर्म करा दिया तुमको। देखो, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स एनायन और कैटायन होते हों। बोलो, इसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, इसके घटक कौन कौन से? कैटायंस एनायन, है बात की नहीं? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इसके घटक कौन कौन से हैं? आर कैटायंस एंड कैटायंस और एनायंस होते हैं, विच आर बॉन्डेड बाय, कैसे बॉन्डेड है? बोलो जरा, बोलो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर, सिर्फ एक अच्छे लिसनर बनो, ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। विच, कितने ध्यान से सुनते हो जब होटल का बहरा बोलता है, कहता है सर ये डाल दे, तो बड़े ध्यान से, जैसे कहीं ध्यान ही ना हो वैसे सुनो। विच आर बॉन्डेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। सो दीज आर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड एंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल मैंने कई बार तुमको दिखाया ना। सो दिस एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सिर्फ तुम मुझे ये बताओ साची, व्हाट डज इट मीन बाय फॉर्मूला यूनिट? संजना, दीपिका, अभिनव, when there is ionic bond between two elements, then they forms formula. बहुत अच्छा, that is formula unit. That is symbolic representation of ionic compound in their simplest ratio, where cation is kept first followed by anions, is called formula unit. सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, केमिकल फार्मूला जानते हो? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन को ही तो केमिकल फार्मूला कहते हैं। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड in their simplest ratio, where cation comes first. cation कैसे आएगा? Comes first followed by anion is called formula unit. And sum of mass of atoms present in formula unit is called, बोलो, सही है। इसका एग्जांपल है जिसमें Na+Cl- MgCl2 सबके चार्जेस के साथ लिखे हैं, देख लो। कैटायन पहले लिखा है, एनायन बाद में लिखा है। The sum of atomic masses of all atoms, इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ खास फर्क नहीं करता है। So sum of atomic masses of all atoms in a formula unit is called formula unit mass. ठीक है? Now आरिश, फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl बताओ। बड़ी देर लगा रहे हो। सब तो ऊपर लिखा था अभी, सबके एटॉमिक मास। कहाँ से दिक्कत आ रही? मोजिद आप बताओ। उमेश, हाँ रोहित आप बताइए। सही है। That is atomic mass of Na plus atomic mass of Cl. तो 23 ग्राम, सॉरी एटॉमिक है तो U में, और 35.5 U, तो कितना हो गया बोलो? 58.5 U। MgCl2 का जिज्ञासा बताओ। Atomic mass of Mg plus atomic वो सब तो ठीक है, Cl में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बता ही दो। 59.5 59.5
24 तो उसी का हो गया और 71 उसका किया होगा। मुझे जोड़ने दो तभी तो पता चलेगा। सही है। 2 Cl क्या हो गए, तो MgCl2 का क्या हो गया, ZnCl2 का बताओ अनुष्का। Zn का बुक में है, ऐसा मत करो। आप बोलो मोहजी बता रहे हो। हाँ बोलो। ये देख लेता हूँ मैं। 65 इन्होंने जिंक कर लिया होगा और ZnCl2 बहुत अच्छा बताती हैं दीपिका। दैट इज, देखो इन्होंने तुरंत बता दिया। चीजें मालूम है इनको, वरना ऐसी कोई बात नहीं। समझ में आ गई? तो तुमको एटॉमिक मास दोनों चैप्टर में साथ लेके चल रहा हूँ, ये वाला और कुछ अगले का भी है, उसका कोई इशू नहीं है, वो सब एक साथ कंप्लीट हो जाएगा दोनों एक ही चैप्टर। चलो तो तुमको ये बात तो समझ में आ गया। जस्ट डिफाइन करो दिग्विजय, आपसे पूछा नहीं गया अभी तक। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट से क्या समझते हो? बुक में हेडिंग है भाई, इसलिए पूछा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलो। उमेश आप बताओ। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। Molecules which contains different types of elements and एलिमेंट सब ना बोलो, यहाँ एटम का ही काम। जब कंपाउंड बोलना तब एलिमेंट बोलना, अभी मॉलिक्यूलर लेवल पर। विच कंटेन्स, atoms in a fixed ratio. हाँ ठीक है, विच कंटेन्स एटम्स इन फ्यूचर। सो इस चीज को लिखो, दोनों तुम्हारी बुक में है। देखो मॉलिक्यूल ऑफ एटम भी है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी है। ये सब पूरा तैयार करके आना। इसका शाम को टेस्ट होगा, पढ़ाया भी जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। जो जरूरी चीज होगी वो टेस्ट लिया जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन सेम टाइप, बात नहीं करो, सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। निशांत जैन ध्यान से देखो, तुम्हारे भी चैप्टर का है, ये सब पढ़ रहे हो ना 8th में, तो पूरा ध्यान दो, इससे ज्यादा पढ़ रहे हो बल्कि। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड नंबर। रिपीट नहीं करो, रिपीट ही नहीं करने दो। फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, molecules of compound. Repeat करो रिद्धि। सही है। When, अब जबकि रिद्धि ने बोल दिया है तो यही क्लास कांत करना पड़ेगा। Different type of atoms chemically combined in फिक्स्ड नंबर भी, नंबर रेशो भी लिख सकते हो या नंबर लिख सकते हो। नंबर का रेशो होता है। इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल दिया है, सेग्रीगेट एज molecule of elements, molecule of compound। सही है। Now that is helium, H2, argon, neon, H2O, 18 ग्राम H2O, ठीक है। 2 ग्राम H2, CO2, 44 ग्राम CO2, NH3, NaCl, ZnCl2 और MgCl2। Now molecule of element
और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। साची बताओ। molecule of element He. अच्छा बता रही हो आशना, आप भी बताओ। साची ने तो बता दिया, तुम भी तो बताओ। H2 वो अकेले के एटम को भी मॉलिक्यूल बता रही है। आधे घंटे मैंने उस पर बेकारी वेस्ट कर दिए। आर्गन को भी ये बताने लग गए। मॉलिक्यूल में मिलना पड़ता है, दो या दो से ज़्यादा जब केमिकली बॉन्डेड होते हैं। क्या आर्गन कभी किसी से बॉन्डिंग करता है? आखिरी लाइन में रेड में लगा हुआ है, सब मोनो एटॉमिक है। आप बताइए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मोनो एटॉमिक को जो मॉलिक्यूल बताया उसे केमिस्ट्री की क्या समझ है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तो मोनो एटॉमिक अकेले रहते हैं, क्या मॉलिक्यूल बनाते हैं? परमाणु और अणु में तो अंतर समझ में आना चाहिए। जब दो मिलेंगे तब तो अणु बनेगा, और लोग एटम को मॉलिक्यूल बता रहे हैं। चलो आप बताओ आशीष, आप तेज हो, बोलो। आपके पास का नहीं है। प्रियांशु 2 ग्राम लो, ये मोल को मॉलिक्यूल बताने लग गए। एक एक मोल H2 लेके बैठा हूँ टोकरी में, कह रहे तो ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल बता। और कोई है? और आपको दिख रहा है? N2O2 कुछ दिख रहे हैं? N2O2। हाँ रिद्धि, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बताओ। H2O और बोलो। 18 ग्राम अच्छा, मोल को इतनी टोकरी में लेके मॉलिक्यूल बताओगी? अन्याय मत करो, बगल में तुम्हारी साक्षी बैठी है। हाँ, एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, एक मॉलिक्यूल बताइए। और बोलो। NH3। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, 1 मोल सब्सटेंस, इसमें 1 मोल सब्सटेंस कौन कौन से बताओ? 18 ग्राम H2O और बोलो। 2 ग्राम H2O और बोलो। 44 ग्राम CO2। फॉर्मूला यूनिट्स इसमें कौन कौन सी हैं? और बोलो। अरे नाम तो बता दो, नाम बताइए प्रॉपर। आइड नहीं लगाओगे, माइनस लगा। जब निगेटिव पे आइड लगता है, प्लस पे ईएम, सोल्ड ईएम, क्लोराइड, इतना तो ध्यान दो। अगला बोलो। MgCl2। यहाँ तक समझ आ गया? अब एटम्स कौन कौन से हैं? या मोनो एटॉमिक? बोलो। और अब जब इतना बता दिया रिद्धि ने, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। शाम को 4 बजे आइए।